Hello student, very good evening to all of you. I hope everything is going smoothly. Student, we are studying the chapter is current electricity, in which we are studying about some basic concept of circuit, and in which we already have done something like Kirchhoff first principle, Kirchhoff second law, and how do we calculate the potential or potential drop across a circuit, and how do we calculate the current across a branch, across a segment of circuit. And last topic, we have calculated that Kirchhoff first law and second law and its application. In order to study the application of Kirchhoff law, we are going to take another application, and that application is Wheatstone bridge. उसको हम लोग Wheatstone bridge से पढ़ेंगे. So let us start with Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. अब क्वेश्चन ये है कि ये Wheatstone ब्रिज है क्या, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रिज. एक्चुअली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर नेटवर्क ऑफ फोर रजिस्टर. फर्स्ट थिंग, इट इज अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है ऑफ फोर रजिस्टर, चार रजिस्टर का नेटवर्क. और फोर रजिस्टर का नेटवर्क का एप्लीकेशन क्या है. नेटवर्क तो बहुत सारे हैं, रजिस्टर का नेटवर्क हम लोगों ने पढ़े हैं. However, CBSE has withdrawn this topic, combination of register and carbon register, due to COVID-19 pandemic. The syllabus has to be reduced. But for some competitive exams of the student which are going to face some competitive exam, it is important topic. So I will discuss much more about Wheatstone bridge and how do we use this bridge as calculation of equivalent register and so on, with a different topic, with a different video actually. Here we will discuss a brief knowledge about Wheatstone bridge and application of it. So first of all, it is a network of four register, and this network is very useful to calculate the resistance of small register or weak register. Say small register or weak register, it means conductor. It is which is used to determine the resistance of conductor. Resistance of it means conductor have obviously very small resistance. So conductor का resistance उस मेथड से कैलकुलेट करते हैं. To determine the resistance of conductor, इसको हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं. ऑब्वियसली इट इज वेरी वीक, सो दिस टेक्निक इज यूज. सी हाउ दिस फोर रजिस्टर फॉर्म ए नेटवर्क टू apply this condition, and how do we calculate the resistance of conductor. See, by a diagram like that. See, a circuit diagram is in this way. This four branch containing the register in this manner. ये फोर जो ब्रांच हैं इन पे ही रजिस्टर हम लगाते हैं, और ये नेटवर्क है. लेट अस नोटिफाई दीज रजिस्टर एज P Q
R and S. This method. And apply the potential difference in any two alternative point. Say like that. Here we applying the potential difference. We will take a battery with the help of a key. ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज होने वाला है। इस नेटवर्क को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ये चार तरह के चार रजिस्टर हैं जिसको इस तरह से कनेक्ट करना ही व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को इस तरह से जब हमने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हम एक डिवाइस लगाते हैं, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर हम लोग लास्ट के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है गैल्वानोमीटर। एक्चुअली एक डिवाइस है गैल्वानोमीटर, और बेसिकली वो क्या करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट इवन सेंस करता है, बहुत ही वीक करंट को मेजर करता है, वो गैल्वानोमीटर होता है। हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हाउ डू वी गैल्वानोमीटर वर्क्स एक्चुअली इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। इट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, we will discuss later, but here just think about the galvanometer is used to sense the current. यहाँ पर हम गैल्वानोमीटर को करंट को सेंस करने के लिए कर रहे हैं। इस नेटवर्क को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में एक होता है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है बैलेंस ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसको थोड़ा समझना है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, लेट नोटिफाई दिस ends A, B, C and D. If potential difference of B is equal to potential difference of D, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ B और पोटेंशियल ऑफ D अगर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम पाएंगे कि जो इसमें करंट है इस ब्रांच में, या गैल्वानोमीटर जो करंट मेजर कर रहा है वो जीरो कर रहा है। अगर दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, इक्वल है, तो उसमें चार्ज का मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं। इट इज क्वाइट सिमिलर, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, देयर इज टू कैनोल in this way, in same way, and if we connected with a pipe, we will observe there is no water is flowing with the pipe, because both canal are at same level, and if a slight change of level of a canal, obviously we will get the a movement of a transfer of water, but as well as level of canal is same, there is no flow of water or current is observed, so it is called balance। तो जब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है, तो इसमें से करंट का मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं, चार्ज मूव ही नहीं करेगा, करंट नहीं होगा। इसी कंडीशन को हम बैलेंस ब्रिज बोलते हैं, सच दैट current in galvanometer is zero. This condition is known as balance bridge. This condition is known as balance bridge. क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस एट B इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस G, तब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, और तब क्या होगा, वो बैलेंस की कंडीशन पे होगी, ये ब्रिज बैलेंस ब्रिज होगी। और इसी कंडीशन के लिए देखो कि सपोज इसने बैटरी ने करंट I बनाया, यहाँ पे जाके इसको दो रास्ते हैं, इस पे मान लिया I1 गया,
तो इस पे मान लेते हैं I2 करंट गई। अब इसमें कोई करंट नहीं है तो ये I1 इस ब्रांच से चली जाएगी, I2 यहाँ से जाएगी और फाइनली करंट I इसलिए आएगी। जबकि क्लोज हो जाए ये हो जाएगा, इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। अब ये अगर बैलेंस ब्रिज है और इस तरह से हमने किया है इसको, तो इस पे हम किरचॉफ प्रिंसिपल लगाएंगे ताकि हम इन रजिस्टर का कैलकुलेशन कर पाएं या रजिस्टर में एक रिलेशन फाइंड आउट कर पाएं, उसके लिए किरचॉफ प्रिंसिपल लगाएंगे। हमने पहले ही बात किया कि इस ब्रिज से बिलोंग करते हुए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर, but actually many boards have reduces their syllabus because of pandemic COVID-19. In order to that, it withdraw, many board has withdraw this topic, obviously not Wheatstone bridge but combination of register. So we will not discuss here how many types of Wheatstone bridge you can form. For example, one will take कि एक इस तरह से होता है, इसको ड्रॉ करने का एक तरीका ये भी है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। आपने इस 10th स्टैंडर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे आई थिंक, कि इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना था और इस तरह से अगर सबके रेजिस्टेंस आर हैं थोड़ी देर के लिए, ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो आर अक्रॉस जो ए बी होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ऑब्जर्व करोगे इधर, तो ये कैसे आर ए बी कैलकुलेट होता है हम थोड़ा सा अभी बताएंगे। कि इसमें करंट ही नहीं जाएगी एक ब्रांच में, जब करंट नहीं जाएगी तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और दोनों सीरीज में हो गए तो ये 2R हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गए तो ये 2R हो गया। अब सॉरी ये दोनों और ये दोनों तो 2R, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। कैसे रीड्रॉ कर लेते हैं जरा सा देखो। इस ब्रांच को खींच के इधर कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया और ये सभी रजिस्टर हैं। इस तरह से सभी आर ओम के रजिस्टर हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे एक आइडिया बनेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें अब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस है इसमें हम एक इन रेजिस्टेंस में एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ आई जी, यहाँ पे यह रहने देता हूँ। एक लूप ये मान लेते हैं, आप इस लूप की कोई डायरेक्शन मान लो इस तरह से, और एक ये मान लेते हैं। तो देखें इन लूप ए बी डी ए, मतलब कैसा आपने लूप माना है, कुछ इस तरह का माना है ऐसा, ए बी डी ए इन लूप ए बी डी ए, ये एक लूप है। अब इस लूप में जरा सा देखें बाय किरचॉफ प्रिंसिपल, बाय किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ के लूप लॉ से देखेंगे। अभी करंट ऐसे फ्लो रही तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव यहाँ है नहीं,
और इसमें करंट आ रही है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस तरह से। ए से बी जाएंगे, I1 करंट है, P रजिस्टर है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, घट रहे हैं, -I1P, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। फिर डी से ए जाएंगे, एक रजिस्टर आर है और करंट यहाँ से निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव होगा। और I2 करंट है, तो I2R इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं कि I1P इक्वल टू I2R, ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक, इसी तरह से दूसरा लूप देखते हैं। इन लूप यहां से BCDB, यानी BCD कैसे करेंगे, इस तरह से इन लूप BCDB, यहां से आ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। I1 करंट है, Q रजिस्टर है, तो -I1Q, और यहां से यहाँ आएंगे, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी प्लस। और करंट I2 है, रजिस्टर S है, I2 इंटू एस इक्वल टू 0, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि I1 इंटू क्यू प्लस इक्वल टू I2 इंटू एस, इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दें। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो पाएंगे क्या, I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। ये I1 I2 एक दूसरे से कैंसिल कर लेते हैं, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये एक रिलेशन होता है इन चारों रजिस्टर में, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S व्हेन ब्रिज इज बैलेंस। जब बैलेंस ब्रिज होता है तब के केस में ये होता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे हम जो बात किए थे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है, देन हाउ डू वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ऑब्वियसली विद दिस इक्वेशन इफ वी हैव एनी 3 वैल्यू, अगर हमारे पास कोई 3 वैल्यू है, देन वी आर एबल टू फाइंड द फोर्थ वन, और उसके हेल्प से हम चौथी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल resistance or unknown resistance with the help of balance Wheatstone bridge. Question now, where we can use and how do we apply this principle? It means we are indicating just what is the device or what is the instrument at which this is applying, or what is the instrument which work on this principle. वो इंस्ट्रूमेंट क्या है जिस पर हम अप्लाई करके इस तरह से कर पाएंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इंस्ट्रूमेंट। हमने पहले ही कहा था कि हमारे इस चैप्टर में 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है मीटर ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज, इसको हम रफ करेंगे। अच्छा, ये एक चीज बता दें, अब जबकि P अपॉन क्यू इक्वल टू R बाई एस, यहाँ से देखें R बाई आर इक्वल टू R बाई आर, ये रिलेशन बराबर हो गया। मतलब यहाँ पे करंट कितनी है, 0 है। अगर यहाँ पे करंट 0 है तो देखें ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, 2R पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R। तो इस तरह से बड़ा यूजफुल ये मेथड है कि हम जब किसी अननोन रजिस्टर का रजिस्टर निकालते हैं या किसी नेटवर्क को का हम इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालते हैं, बेसिकली जो व्हीटस्टोन पे होता है, तो ये हमको ऑब्जर्व करना होता है, ये हमको ध्यान देना रहता है। हम बात करेंगे कि किन किन मेथड में होता है, किसका अलग से ही वीडियो बनाएंगे, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और कुछ एक उसमें नेटवर्क लेंगे। बड़ा टॉपिक है, 1-2 घंटे का एक वीडियो हम लोग इस पे करेंगे। फिर तब तक हम रख करते हैं और दूसरा टॉपिक करते हैं, इसको सब लोग लिख लेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एक डिवाइस होता है
उसको हम लोग मीटर ब्रिज बोलते हैं। अब इस मीटर ब्रिज में क्या क्या होता है, एक 1 मीटर लॉन्ग वायर, और ये वायर बेसिकली ऐसे मटेरियल का होता है जिस पर हीटिंग इफेक्ट कम हो, यानी उसका रेजिस्टेंस हीट होने से कम वेरी करे। तो उस मटेरियल में बेसिकली हम लोग एलॉय लेते हैं, मैग्नीन लेते हैं, टंगस्टन लेते हैं, इसका बना रहता है। और उसमें कुछ एक स्ट्रिप होती है, कॉपर की स्ट्रिप, जिससे डिफरेंट कंपोनेंट उस पर ऐड किए जाए। मैं उसका एक डायग्राम यहाँ पे, वो ब्लॉक डायग्राम तो उस तरह से है, सर्किट डायग्राम मैं एक दूसरा ड्रॉ करता हूँ, ध्यान देंगे मीटर ब्रिज का। तो वी हैव ए मीटर ब्रिज लाइक दैट। These are the strip, basically metallic strip. इस तरह से दो एल शेप की और एक इस तरह से स्ट्रेट ऐसी मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं। इस तरह से ये इनके दो पॉइंट के बीच में एक, वही जो हमने बताया टंगस्टन या मैग्नीन, एक एलॉय का वायर फिट रहता है, उसी तरह से जैसे गिटार में वायर होता है, इस तरह से एक वायर इसमें फिट होता है, ऐसा। और यहाँ पर एक स्केल फिट की रहती है। इस तरह की ये एक स्केल है। It is 1 meter or 100 centimeter long scale. Obviously, length of wire is also 1 meter or 100 centimeter. This is 0, this is 100 centimeter. ये जो वायर है ये मैग्नीन वायर है। ये एक ब्रांच, एक दो इस पे पिन लगे रहते हैं, इसमें से हम एक रजिस्टर इस पे ऐड कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस इसमें हम लगाते हैं। एक ये टर्मिनल, इसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स फिट करते हैं। ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स एक
डिवाइस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डिफरेंट कीज लगे रहते हैं और वो की ऊपर तो कॉपर की एक फ्रेमिंग होती है, बीच में स्लॉट फिट होते हैं। जैसे उसको विड्रॉ करते हैं तो उसके दो टर्मिनल के बीच में एक रजिस्टर लगा रहता है, वो रजिस्टर उस पर ऑफर हो जाता है। पहले वायर रैप करके आता था, अभी दोनों के बीच में कार्बन रजिस्टर फिट किए रहते हैं, हम दिखाएंगे इसको लैब में। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसका जो यूज या एप्लीकेशन है, उसकी जो की आप ओपन करेंगे इन दो पॉइंट के बीच में उसमें एक रेजिस्टेंस ऑफर हो जाएगा उतने के, और उस पर रीडिंग होती है कि कितना ओम का रजिस्टर ये है। यहां से एक पॉइंट ऐसे लेके गैल्वानोमीटर में ऐड कर देते हैं और दूसरे पॉइंट से एक जॉकी, एक पेन जैसा डिवाइस होता है, नाइफ एज का एक पेन जैसा डिवाइस होता है जिसको हम लोग जॉकी बोलते हैं, उससे कनेक्ट कर देते हैं। ये जॉकी इस पर रन कर सकती है, इस पे स्लाइड करते हैं हम लोग, और स्लाइड करने से ये गैल्वानोमीटर की रीडिंग क्या होती है, वेरी करती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब एक सर्टेन पॉइंट पर इसमें करंट जीरो हो जाती है तो वो बैलेंस ब्रिज का काम करता है। ये जो वायर मैग्नीन वायर है, ये वायर यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म वायर है, और इसके बीच में यहां से बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। यहीं पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जिससे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सके। एक की हेल्प से इस तरह से ये बैटरी का पोटेंशियल कुछ होगा ही। अब देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर इसका नल पॉइंट आ गया, या यहाँ पर इसमें करंट जो आ गई, गैल्वानोमीटर की रीडिंग इस तरह से आ गई, इस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं या बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट कहते हैं। ये बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि अब ये 1 2 3 और 4, क्योंकि ये वायर है, रेजिस्टेंस वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा लेंथ के अकॉर्डिंग। ये चारों रजिस्टर इस तरह के अरेंजमेंट में आ गए हैं कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहे हैं। अब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज अगर ये फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसका प्रिंसिपल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं देखिए। अच्छा एक हाँ, तो ये जो रजिस्टर, ये तो आपको लेंथ है और इसकी रजिस्टिविटी कुछ पता ही होगी, इसका निकल जाएगा। ये आपको की विड्रॉ करोगे तो उसका पता चल जाएगा। ये अननोन रजिस्टर होता है, अननोन रजिस्टर, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में वही रजिस्टर या वही कंडक्टर जोड़ देते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लें ये x है और ये रेजिस्टेंस बॉक्स से आएगा y, और ये मान लेते हैं कि L सेंटीमीटर पर यहाँ से A से, ये पॉइंट A है, ये B है, और इनको भी नोटिफाई कर लेते हैं स्मॉल a b c d से। तो बैलेंसिंग पॉइंट हमेशा A से यानी 0 की तरफ से देखा जाएगा। हम मानते हैं कि स्लाइड करते टाइम जो जॉकी को A से L डिस्टेंस पर बैलेंस पॉइंट आ गया, मतलब गैल्वानोमीटर की रीडिंग क्या आ गई, 0 आ गई, तो IG = 0 हो गई। तो ये L लेंथ है, जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, वो 100 - L हो जाएगा। तो जब ये रीडिंग 0 हो गई तो ये बैलेंस ब्रिज का केस हो गया। अब बैलेंस ब्रिज का जब केस हो गया तो इस पे देखें किस तरह से हम सॉल्व करेंगे।
तो एक तो x है, एक y है, तो हम क्या लिखेंगे, जरा सा ध्यान देंगे। x अपॉन वाई इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l। लिखेंगे क्या, एज IG इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का केस आ रहा है। तो इस कंडीशन पे आप देखोगे कि x अपॉन वाई यानी p अपॉन क्यू, एक p और ये q हो गया, ये r हो गया, ये s हो गया, इक्वल टू इस लेंथ का रो l बाई a रजिस्टर होगा। कोई वायर सिलेंड्रिकल हो तो इसका रजिस्टर इतना होगा, रेजिस्टेंस, अपॉन रो 100 माइनस ए बाई ए ने ए को कैंसिल कर दिया, रो ने रो को कैंसिल कर दिया, हमारे पास आएगा l अपॉन 100 माइनस l, यानी x अपॉन वाई इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l। अब l आपको पता ही चल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये रीडिंग लगी हुई है, मीटर स्केल लगा हुआ है। y आप सिंस नोन ही रख रहे हैं तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। x इक्वल टू लिख पाएंगे y इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, और इस तरह से एक अननोन रजिस्टर का या कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बेसिकली, उसमें कंडक्टेंस ऑफ सेल पढ़ा होगा, और सेल का कंडक्टेंस भी इसी मीटर ब्रिज से कैलकुलेट करते हैं। जहां पर हम रजिस्टर लगाते थे वहां पर इलेक्ट्रोलाइट सेल यूज कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेके कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कैलकुलेट की जाती है, और मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये मीटर ब्रिज है, कंस्ट्रक्शन इस तरह से है, वर्किंग भी इस तरह से, आप इसका एक नोट बना लेंगे। और इस पे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि ये जो स्ट्रिप है, मेटालिक स्ट्रिप, ये कॉपर स्ट्रिप होती है। ये कॉपर स्ट्रिप इतनी वाइड कितनी यूज क्यों करते हैं, इसकी जगह पे एक वायर क्यों नहीं यूज करते? क्वेश्चन ही आता है, बोर्ड में पूछा गया 1 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाई डज कॉपर स्ट्रिप यूज इन मीटर ब्रिज इज थिकर। तो ये है कि जो हम रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं, इन कॉपर स्ट्रिप के रजिस्टर को हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। अब उसको अगर नेग्लेक्ट करना है तो उसका एरिया बढ़ा दो, जिससे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, सिंस आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो इस एरिया को अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम आएगा, और उस कंडीशन में हम इसको नेग्लेजिबल मान लेंगे। दूसरा ये है कि ए और बी के बीच में ये पॉइंट हम कैपिटल सी लेते हैं, ये डी लेते हैं, और इसका इक्विवेलेंट जो आपको एक सर्किट बनाते हैं वो इस तरह से देखो। ए बी सी और डी, यही है। सी और डी के बीच में गैल्वानोमीटर है, ए और बी के बीच में इस तरह से चारों रजिस्टर हो गए। कौन कौन से रजिस्टर हैं, देखें, एक्स और वाई पे है, एक्स और वाई किस में है, सीरीज में है ना, इस तरह से, और ये दोनों सीरीज में है, एल और 100 माइनस एल। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट वो है, ऑब्वियसली ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे है। एक क्वेश्चन आता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि अगर जिन सी और डी पे गैल्वानोमीटर जुड़ा है, ए और बी पे बैटरी जुड़ा है, अगर इसको इंटरचेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? पहला क्वेश्चन, इफ बैटरी एंड गैल्वानोमीटर इज चेंजेस देन व्हाट इज द इफेक्ट? तो आप जो P अपॉन Q देखे थे,
P अपॉन क्यू इक्वल टू आर बाई एस, तो इसको अब इसलिए हम लिख सकते हैं P अपॉन आर इक्वल टू क्यू बाई एस। तो बैटरी और गैल्वानोमीटर के टर्मिनल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आएगी। दूसरे ये है कि अगर x और y को चेंज कर दिया जाए, मतलब ये यहाँ लगा दिया जाए, ये वहाँ लगा दिया जाए, तब ये l उधर हो जाएगा और ये 100 माइनस l इधर हो जाएगा। ये कुछ एक कंसेप्ट के क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं और इस पे एक न्यूमरल प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो मैं इसको रफ करके एक न्यूमरल प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ और एक कोशिश करते हैं एक ही क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर लें जिनसे सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं या पूछे जाते हैं, या ऑब्वियसली जितने टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरल प्रॉब्लम फ्रेम किए जा सकते हैं इस पर है। अब सिंस ये मेजरमेंट की बात है तो इससे रिलेटिव एरर पे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि कंपटीशन के लेवल का है, तो यहाँ पे हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये डिवाइस जो है वो जीरो करंट डिवाइस है तो इसकी एक्यूरेसी हायर है, तो उस एक्यूरेसी पर भी क्वेश्चन आता है। जितने भी जीरो करंट डिवाइस होते हैं उनकी एक्यूरेसी लेवल हाई रहता है और एक्यूरेसी लेवल हाई होने से हम इसका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उस एक्यूरेसी पे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उसको हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वो हमारे इस बोर्ड के लेवल का नहीं, बोर्ड में कभी उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन हम इस पे बेसिकली फ्रेम करते हैं, ये सब रफ करेंगे। एक क्वेश्चन था, एक फिगर दिया था, ये रफ करूंगा पूरा। इसी एक फिगर दिया था, उस फिगर को मैं इसी में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सब रफ कर देता हूँ, ये सब की जरूरत नहीं है, ये सब आप समझ के रखें उसमें बैटरी जुड़ी है क्या है। प्रॉब्लम ऑन मीटर ब्रिज। एक क्वेश्चन इस तरह से दिया था, कुछ ये भी रफ करूंगा। कहा कि दो रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है और एक रजिस्टर ये है। ये एक्स है, ये मान लेते हैं वाई, और इन रजिस्टर से जो बैलेंस पॉइंट आ रहा था, जो नल पॉइंट आ रहा था, वो ए से 60 सेंटीमीटर पे था। नल पॉइंट इज ऑब्जर्व या बैलेंस पॉइंट इज ऑब्जर्व एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। जो भी ये नल पॉइंट ऑब्जर्व होगा वो आप क्लियर कट नोटिफिकेशन दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो आप समझो कि जीरो की तरफ से है। तो ये कहा कि कितना है, 60 सेंटीमीटर पर है, ये मान लेते हैं। यहाँ पर नल पॉइंट ऑब्जर्व हुआ, आई जी इक्वल टू 0। ये एल लेंथ जो दी गई वो कितनी थी, एल इक्वल टू 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो बची हुई ये मान लेते हैं डी पॉइंट, बी डी कितनी बच जाएगी, बी डी बच जाएगी आपको 40 सेंटीमीटर। और ये वायर यूनिफॉर्म है तो हम उसको वो कंडीशन लगाएंगे। तो क्वेश्चन यही था कि एक एक्स वाई रजिस्टर के वजह से जो नल पॉइंट ऑब्जर्व होता है वो कितना होता है, इससे 60 सेंटीमीटर होता है। फिर उसमें एक चीज कहा इसने, कहा कि अगर y के साथ 15 ओम का रजिस्टर सीरीज में जोड़ देते हैं तो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ध्यान देंगे। इन फिगर null point is observed
60 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इफ ए 15 ओम रजिस्टर, अगर एक 15 ओम का रजिस्टर इज कनेक्टेड सीरीज विद y, डिटरमिन द x एंड y, सॉरी y के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो नल पॉइंट इज शिफ्टेड टू, नल पॉइंट शिफ्ट होता है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द x एंड y, x और y फाइंड आउट करना था पहली चीज। दूसरा क्या बात पूछा? ये पहला पूछा कि फाइंड x एंड y। दूसरा पूछा कि अगर 15 ओम का रजिस्टर x के साथ जोड़ा जाता है तो नया नल पॉइंट क्या होगा? इफ 15 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड सीरीज विद x, देन पोजीशन ऑफ नल पॉइंट क्या होगा? इफ 15 ohm resistor is connected series with x, position of null point, null point का पोजीशन क्या होगा? फिर पूछा इसमें कि अगर ये 15 ओम का रजिस्टर y के साथ पैरेलल में हो तब नल पॉइंट क्या होगा, और x के साथ पैरेलल में हो तब क्या होगा? इफ 15 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड पैरेलल विद y, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। और चौथा पॉइंट पूछा कि ये रजिस्टर अगर पैरेलल में जोड़ा जाए x विद नल, तब नल पॉइंट क्या होगा? ये जो पैरेलल में जोड़ते हैं इसके लिए एक लैंग्वेज और होती है शंटेड विद। पैरेलल में रजिस्टर जोड़ने के साथ एक लैंग्वेज और यूज करते हैं शंटेड, मतलब एक 15 ओम रजिस्टर इज शंटेड विद x एंड y, देन फाइंड द नल पॉइंट। ये सारे कुछ एक कंडीशन है जिस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हम इन सब पे डिस्कस करते हैं। पहला सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन में क्या कहा उसने? एक्स वाई के साथ जो नल पॉइंट था, सॉल्यूशन देखेंगे। एक्स वाई के साथ जो नल पॉइंट था 60 का था, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 60/40, 3/2, यानी x इक्वल टू 3/2y, इक्वेशन 1। फिर कहा कि अगर y के साथ 15 ओम रजिस्टर सीरीज में जोड़ देंगे तो हम नया रेजिस्टेंस मान लेते हैं y प्राइम हो जाता है। y प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? y प्लस 15, देन x तो वही रहेगा, y कितना हो जाएगा? y प्लस 15, और 10 सेंटीमीटर ये शिफ्ट हो रहा है। अब ये देखो क्वेश्चन, ये आपको समझना होगा कि 10 सेंटीमीटर किधर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं दिया किधर शिफ्ट हो रहा है। तो आप सोचो कि अगर ये 15 बढ़ा, ये चीज 15 बढ़ा, और पहले x अपॉन वाई इक्वल टू दिस अपॉन दिस था, तो ये चीज जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना चाहिए, तभी तो रेशियो मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये ब्रांच 0 पे ही होना है। तो 10 सेंटीमीटर बढ़ने की जो बात कह रहे हैं वहां पे, वो किधर बढ़ेगा? यहाँ बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। यानी ये 60 के बजाय ये कितना आ जाएगा? अभी L इक्वल टू 50 आ जाएगा नई कंडीशन के लिए। जब उस पे आप 15 ओम रजिस्टर जोड़ दोगे सीरीज में y के साथ, तभी कितना हो जाएगा? यहाँ इस तरफ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये चीज बढ़े तो ये बढ़ना चाहिए, तभी रेशियो क्या होगा? मेंटेन होगा। तो आप देखोगे x अपॉन वाई प्लस 15 इक्वल टू 50 अपॉन 50,
सच दैट x इक्वल टू वाई प्लस 15। इक्वेशन 2 फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। बेसिकली x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे या y की वैल्यू रख दें 2/3x, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी x इक्वल टू 2/3 x प्लस 15। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगी 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 45। x इक्वल टू 45 ओम। और यहाँ पर x इक्वल टू अगर 45 रखेंगे तो 2/3 30 y इक्वल टू 30 ओम। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व हो गई। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर यही x इसके साथ सीरीज में जोड़ा जाता तो नया नल पॉइंट किधर होता। हम मान लेते हैं नया नल पॉइंट ऑन कनेक्टिंग या एडिंग 15 ohm resistor series with x, let new null point be at L centimeter from A। हम कहते हैं कि अगर x के साथ सीरीज में 15 ओम का रेजिस्टर जोड़ते हैं तो नया जो नल पॉइंट है वो कितना मान लेते हैं L सेंटीमीटर आ रहा है। कहां से? 15 सेंटीमीटर पे आ रहा है। देन फिर से प्रिंसिपल लगाते हैं। x अपॉन वाई इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L हो जाएगा। x और y की वैल्यू हमको पता है, कितना है? x की वैल्यू 45 है और y इस पे 15 जोड़ रहे हैं, x प्लस 15 कर दे, क्योंकि कह रहा है x के साथ सीरीज में जोड़ना है। प्लस 15 अपॉन y कितना है? y हमारा 30 ही है, इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। और 15 और 45 हो जाएगा 60 और 60/30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इसको इधर करेंगे 200 माइनस 2L इक्वल टू L, यानी 200 इक्वल टू 3L। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 200/3। यहाँ से L इक्वल टू अगर रख देंगे 200/3 तो आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। तो नया नल पॉइंट कितना आ गया? 67 समथिंग आ गया। इन दोनों में से एक कर दे रहा हूं, एक आप खुद से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर 15 सेंटीमीटर पैरेलल में जोड़ देते हैं y के साथ तो नया नल पॉइंट कितना होगा? थर्ड सॉल्यूशन का था। 15 सेंटीमीटर अगर पैरेलल में जोड़ते हैं y के साथ तो y प्राइम ऑन 15 ओम रजिस्टर पैरेलल विद y लेट बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट बी एल प्राइम मान लो। तो अगर इसके साथ 15 ओम पैरेलल में जोड़ते हैं ऐसे, तो नया जो इसकी जगह पर y मान लेते हैं प्राइम आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 15 इंटू वाई अपॉन 15 प्लस वाई। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं R1 एंड R2 देन इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो नया नल पॉइंट हमने कितना मान लिया? L आ गया। तो यहाँ से देखेंगे, फिर से लगाएंगे, x अपॉन y की जगह पर कितना आएगा 15 y और अपॉन y प्लस 15, तो यही पर जाएगा, कितना हो जाएगा 15 प्लस y
इक्वल टू L अपॉन 100 L प्राइम माइनस 100 माइनस L प्राइम। एक्स वाई सारी वैल्यू पता है हमको, एक्स की कितना है 45, वाई की 30। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है कैसे, 45 इंटू 15 प्लस 30, 45 अपॉन 15 इंटू 30, 45 इंटू 45 2025 2025 अपॉन 450 इक्वल टू एल प्राइम अपॉन 100 माइनस एल प्राइम। ये हो गया, 45 का 45 स्क्वायर कर देंगे। और इसको जब सॉल्व कर लें तो एल प्राइम जो आएगा वो हो जाएगा 80, कितना आ जाएगा, इसको अगर इधर करेंगे 5 5 जा 45, 5 4 जा 20, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 81 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, 81.8 सेंटीमीटर। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो फ्रेम किए जाते हैं या जिनसे क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड में कुछ इस तरह से, मीटर ब्रिज से, और इसी से आते हैं। अब आई होप आप कर पाओगे इसको। ये वाला फोर्थ वाला कर लेना, इसका नोट्स बना लेना, और यहाँ तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग एक और डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक और प्रॉब्लम अगर मैं देखूंगा या किसी को कुछ डाउट होगा तो उस पर हम कमेंट के भी हाथ पे कर लेंगे एक आध दो क्वेश्चन। यहाँ तक पढ़ेंगे। थैंक्स लॉट।